Hello students. Yesterday we read chapter first, Joy in the Jungle, but it was not completed. So today we will try to complete it. Let's once I'm telling you what we read yesterday. कल हमने क्या पढ़ा था? Yesterday we were reading on board. कल अपन ने बोर्ड पे पढ़ा था. But today you should also open your book. आप भी अपनी book open करें and just see this chapter is there in your book or not, and wherever you will get hard words, just make underline, and whatever hard words Hindi meanings I have given you yesterday, you can write up of the hard word. So while reading the book you will not face the problem to translate the in Hindi. Let's see. Joy in the Jungle. Name some animals that can be seen in a jungle. कुछ ऐसे एनिमल्स के नेम बताओ जो मोस्टली फॉरेस्ट जंगल में ही मिलते हैं. सो मे बी यू कैन से लायन, फॉक्स एक्सेट्रा. कल मैंने आपको पढ़ाया था दिस स्टोरी इज़ अबाउट मुन्नू, अ विलेज बॉय हु लव्स एनिमल्स. ही इज सैड टू सी अ rhino. Rhino is the name of an animal. Rhino is the name of an animal. Do you know which animal is this? Have you ever listened? Gander. Yes, looks like elephant. It found in especially in forest. So rhino in pen. One day Munnu was in a forest and he saw a rhino in pen. Means he got hurt. Yeah, he was getting pain. Why he was getting pain, what happened with rhino, we will read in this chapter. Okay, so let's see. Munnu lives in a village near the Kaziranga forest. Kaziranga forest, I have told you yesterday. Where is Kaziranga forest? Have you remember? Kaziranga forest is in Assam. Munnu lives in a village near the Kaziranga forest. Where is Kaziranga forest? Kaziranga forest is in Assam. Very often I have given you Hindi meaning बार. He roams around the jungle. कई बार मुन्नू very often he roams around the jungle riding on a buffalo. यानी मुन्नू बफेलो पे बैठकर उस जंगल में कई बार घूम चुका है. बार. ऑफन बार. रोम्स का मतलब घूमना. अराउंड द जंगल. सो वन डे, एक दिन, ही फाइंड्स अ होलो पीस ऑफ बैम्बो. वन डे ही फाइंड्स, एक दिन उसे मिलता है, find मिलना, a hollow piece of bamboo. You know what hollow piece? Yesterday I have told you. Have you remember? A stick which has hole inside, and he looks at it. और मुन्नू उसे देखता है. It seems strong and sturdy. He picks it up. मुन्नू it seems strong. ये दिखने में कैसी थी? The hollow piece, it was strong and sturdy. He picks it up. ये देखने में मजबूत, सख्त दिखाई दे रही थी. He picks it up. I have told you pick, उठाना, लेना, पकड़ना. So he picks it up. और मुन्नू उसे ऊपर उठा लेता है. Now see, मुन्नू comes back home. Munnu comes back home. He hands over the bamboo piece to his father, and
घर आते, मुन्नू कम्स बैक, कम्स आता है, बैक वापस, होम घर, मुन्नू वापस घर आता है। एंड ही हैंड्स ओवर मतलब देना, द बैम्बू पीस टू हिज फादर, और वो बैम्बू पीस वह अपने फादर को देता है। पापा व्हाट ही सेज, क्या बोलता है, यू कैन सी इन द पिक्चर विच इज़ मुन्नू एंड हिज फादर। सो ही सेज टू हिज फादर, पापा प्लीज़ मेक अ पाइप आउट ऑफ इट फॉर मी। मुन्नू अपने पापा से बोलता है कि पापा प्लीज़ मेक, बनाना, अ पाइप आउट ऑफ इट फॉर मी, कि मेरे लिए आप इस लकड़ी से, इस बैम्बो पीस से क्या बना दो, एक पाइप मैंने बताया था, नॉट इन विच वी यूज़ फॉर अ पाइप वी यूज़ फॉर वाटर सर्विस, नो, हियर the writer used the name pipe for a flute which is made of wood which has a stick like which has holes, okay, yani like बांसुरी. So he gave the piece to his father and said, Papa please make a pipe out of it for me, आप इससे मेरे लिए एक पाइप बना दीजिए. Father makes a beautiful pipe, father makes a beautiful pipe for him, और उसके पापा उसके लिए एक बहुत सुंदर सी बांसुरी, एक पाइप बनाते हैं. मुन्नू लर्न्स, लर्न का मतलब होता है सीखना, लर्न सीखता है, टू प्ले द पाइप, और मुन्नू उस पाइप को प्ले बजाना सीखता है. वन डे वाइल प्लेइंग द पाइप, एक दिन while playing the pipe he gets absorbed, I have told you yesterday, absorbed यानी मग्न हो जाना, लीन हो जाना, मंत्रमुग्ध हो जाना, खो जाना. One day while playing the pipe he gets absorbed, little realizing that he has entered the jungle. One day while playing the pipe he gets absorbed, little realizing that he has entered the jungle. एक दिन बांसुरी बजाते हुए मुन्नू इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पहुँच गया, जंगल में. He plays the pipe to the delight of birds and animals inside the jungle, और ही प्लेस वह बजाता है, पाइप ऑफ द डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है खुश करने के लिए, आनंदित करने के लिए, ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स इनसाइड द जंगल, जंगल के अंदर जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स थे उनको खुश करने के लिए, उनको आनंदित करने के लिए मुन्नू अपना पाइप प्ले करता है, वह उसे बजाता है. एज मुन्नू प्लेज द पाइप, जैसे ही मुन्नू उस पाइप को प्ले करता है, बजाता है, एवरीथिंग इन द जंगल, एवरीथिंग इन द जंगल बिगिन्स टू चेंज, बदलने लगता है. यानी जंगल के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, बिगिन्स का मतलब होता है शुरू होना, और चेंज बदलना. जैसे ही वो गाना बजाता है, जंगल में जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाती हैं. इट गेट्स फिल्ड विद ब्यूटिफुल फ्लावर, और धीरे धीरे सारा जंगल है वो सुंदर सुंदर फूलों से भर जाता है. इट गेट्स भर जाता है, फिल्ड फुल विद ब्यूटिफुल सुंदर फ्लावर्स. मुन्नू इज़ वेरी हैप्पी, और ये देखकर मुन्नू बहुत खुश होता है. यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर एनिमल्स, मंकी, डियर, बर्ड्स, एंड ही इज़ प्लेइंग द फ्लूट. आई हैव टोल्ड यू लाइक बांसुरी, बांसुरी को अपन फ्लूट बोलते हैं और पाइप भी बोल सकते हैं. ओके, एंड यू कैन सी द फॉरेस्ट, all the flowers, all the plants are having colorful flowers. Now see, he then noticed a rhino rolling in the mud. He then noticed a rhino rolling in the mud. मड का मतलब होता है कीचड़,
और रेनो का मतलब होता है गेंडा। गेंडा इज़ द नेम ऑफ एन एनिमल। तो इन सब के बीच में व्हेन ऑल द एनिमल्स वर हैप्पी एंड इंजॉइंग द ट्यून ऑफ मुन्नोज पाइप एट दैट टाइम ही नोटिस दैट एक गेंडा जो कि मड कीचड़ में गिरा हुआ था, रोलिंग मतलब लुढ़क रहा था, गिर रहा था, उठ रहा था। मुन्नू गोज ऑन प्लेइंग हिज पाइप, मुन्नू गोज ऑन प्लेइंग हिज पाइप, और मुन्नू अपनी पाइप को बजाते हुए उसकी तरफ जाता है। द राइनो स्टेयर्स, स्टेयर का मतलब होता है घूर घूर के देखना, वॉट, टकटकी लगाकर देखना, वी कैन से घूर घूर के देखना। सो व्हेन द मुन्नू वेंट टू हिम नियर बाय द राइनो ही स्टार्टेड टू स्टेयर मुन्नू, उसने मुन्नू को घूर घूर के देखना शुरू कर दिया। एज इफ इन पेन, जैसे कि उसको कोई पीड़ा थी, पेन दर्द, तकलीफ। मुन्नू कम्स बैक होम, मुन्नू वापस घर आता है। मुन्नू कम्स बैक होम, पापा। ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द जंगल वर हैप्पी टू हियर मी प्ले द पाइप। तो मुन्नू अपने पापा को बताता है कि ऑल द बर्ड्स, सारे पक्षी एंड एनिमल्स, जानवर इन द जंगल, जो भी फॉरेस्ट में जितने भी बर्ड्स एंड एनिमल्स थे, वह हैप्पी टू हियर। हियर का मतलब होता है सुनना, हियर मीन्स सुनना। द ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स वर हैप्पी टू हियर मी प्ले द पाइप, बट वाई वॉज द रेनो सो सैड। लेकिन वो रेनो है वो खुश क्यों नहीं था। तो उसके पापा बोलते हैं, सन, बेटे, मे बी, हो सकता है, मे बी, हो सकता है, द रेनो इज सैड, रेनो इज सैड बिकॉज द पोचर्स कम एंड किल दैम, दे टेक द हॉर्न्स अवे। देन हिज फादर टोल्ड हिम दैट मे बी, हो सकता है, रेनो इज सैड, वो दुखी है क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि पोचर्स का मीन्स होता है शिकारी के आदमी, शिकारी के आदमी जो कि शिकार करते हैं, यू नो, हंटर्स kill animals in forest and take their skin, their horns, horn means सींग, horns का मतलब होता है सींग। तो मे बी रेनो को ये लगता था कि कहीं शिकारी उसको मारकर, उसको पकड़कर उसके सींग वगैरह ले नहीं जाए, इसलिए वो दुखी था। मुन्नो इज़ वेरी सैड, और मुन्नो ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। ये 2 पेजेस ऑफ आ फर्स्ट चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। आज 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। मैं आपको इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स एंड MCQs are there in the last of the chapter that I will provide you in assignment, so complete both the questions in your notebook, and today we will read only these 2 pages and hope you will read at home. You understood very well and read till here. Mono A is very sad. Till here you will read it 2 times, or if you get any problem then in assignment just write these the words which you don't know the mean, how to pronounce. You can send in assignment. I will tell you how to speak and what is the Hindi mean of these words. Thank you.